Anam. Most welcome at the Rise of Forbes. So learners, I welcomed you again here with a new topic, a content which is very useful, but we are not aware about the use of these three conjunctions which are looking same in first look, but there is a difference. As we know that there is modal auxiliaries which they tell us about the mood only, that what is the mood of the speaker. In the same way, here is the difference between these though, although, yet, even though. So we will learn how to use these conjunction. Although means होता है हालांकि, यद्यपि, अगर हम बात करें हिंदी में तो how to use this. देखो, although the meaning is same, though its meaning is same, it can be the combination of though, although and yet का एक पेयर बन सकता है, and even though. Actually these will tell us the contrast between the sentences. Okay, but भी ऐसा है जो हमें contrast बताता है. Okay, but is also an adversative coordinating conjunction, and these are subordinating conjunction. So learners, open your mind for learning that how to use these conjunction. A minor difference is here, but need is to open your mind, focus on the point what I want to convey to you. जो आपको समझाना चाह रही हूँ उसको समझने की जरूरत है बस. अब देखिए आप, here are some examples because examples are the best method to understand any content. Without examples it look awkward and the absurd that how we can understood. Verbally मैं आपको 10 example यहाँ पर बता दूँ, but that will not can be kept in your mind. Why it's so? Because verbal things are the temporary things. These can be forgotten within the minute, within the second. That's why I have written some of the examples here. So just try to understand this difference. First example. Although he had studied hard for this test, he failed to get 98% marks. हालांकि उसने मेहनत की, he had studied hard for this test. इस टेस्ट के लिए उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी. He failed to get 98% score. लेकिन फिर भी कंट्रास्ट है, हुआ क्या? He didn't get 98% marks. कंट्रास्ट है, दिखाई दे रहा है हमें, कंसेशन है that he had studied hard but still he didn't get 90 marks. हालांकि उसने बहुत मेहनत की थी but he failed. अब हमें क्या करना है? although हमें हालांकि बताता है और ये एक सेंटेंस पर जोर डालता है with which it has been used. although आपने इसके साथ, इस क्लॉज के साथ यूज किया है he had studied hard, so it is putting more emphasis on this part. हालांकि उसने बहुत मेहनत की but 98% नहीं आ सके. So my tone, I think it is making you clear the concept. It is clear to you कि क्या हुआ. हालांकि बहुत मेहनत की but 98% नहीं आए. चलो, my house was not empty though I was gone. Though I was gone. One another thing learners here to understand is that it's not necessary that though and although we will use in the starting only. At the starting of the sentence, no. Anywhere we can use. It can come in middle also. ऐसे भी हो सकता है my house was not empty though I was gone. जबकि मैं जा चुका था, हालांकि मैं जा चुका था but मेरा घर खाली नहीं था. So try to understand the tone on at which I am telling you, I am conveying you this message in Hindi. इंग्लिश में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है उसको समझने की. And for making that difference clear, I brought these 3-4 conjunction to you. कि जब हम एक साथ बल्क में कंजंक्शन लेकर आते हैं तो कंफ्यूजन का सिस्टम हो जाता है. But here only 3, so you can understand the difference between all these. अब देखो आप, my house was not empty though I was gone means in between of the sentence you can use though, और emphasize दे रहा है इस पर.
अब लर्नर्स आपके माइंड में बात आ रही है कि हियर ऑल्दो एंड हियर दो, देन व्हाट इज द डिफरेंस? कोई डिफरेंस नहीं है। कई बार हमारा नेम कुछ और होता है एंड आवर फैमिली मेंबर्स स्टार्ट कॉलिंग अस विद एनी न्यू नेम, ठीक है, एक निक नेम से बोलने लग जाते हैं। आई एम गिविंग यू एग्जांपल लाइक माय एल्डर सन्स नेम इज अश्मित बट वी आर कॉलिंग हिम एज अंशु एट होम, सो अंशु इज निक नेम ऑफ अश्मित, समझ में आ गई? एंड हियर although can be called as the nickname of although का nickname है बस, और कुछ नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम यूज है। although though anyone can use, you can use although here also, you can use though here also, but at this time आजकल के टाइम में क्या होने लगा है, especially in the writings, in articles, in the notices, we are using though। बड़े फास्ट पेसिंग हो गए ना हम, so we don't want to waste more time, okay? अगर हमारा दो में काम चल रहा है तो ऑल दो बोलना ही क्यों है, क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है ऑल भी बोलकर, ओके? सो इस टाइम ज़्यादातर हम यूज करते हैं दो, एंड इवन बोथ आर करेक्ट, दो इज ऑल्सो करेक्ट, ऑल दो इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट कम द पॉइंट ऑफ इवन दो। यस, वन मोर थिंग लर्नर्स, कि येट और दो का पेयर होता है। आप यहाँ पर येट यूज कर सकते हो, बट देन यू हैव टू रिमूव कोमा फ्रॉम हियर। अगर आप यहाँ पर से कोमा रिमूव कर दोगे तो आप येट यूज कर सकते हो। इट्स योर चॉइस, बोथ आर करेक्ट। इफ यू वांट टू रिमूव येट फ्रॉम हियर देन पुट ए कोमा हियर, बट का यूज नहीं हो सकता। यू कैन नॉट यूज बट विद ऑल्दो और दो और ऑल्दो के पेयर में बट का यूज नहीं होगा, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, दे कुड डू देयर ओन कुकिंग इवन दो इट वुडंट बी एज नाइस। जब हम एक ही सेंटेंस पर, एक ही क्लॉज पर ज्यादा फोकस करना चाह रहे हैं, विद विच वी हैव यूज्ड ऑल्दो, इट मीन्स हम एक पॉइंट को हाईलाइट करना चाहते हैं। बट इफ वी आर यूजिंग इवन दो का यूज होने का मीन्स है दैट यू वांट टू एक्सेजरेट द थिंग्स। आप थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर पूरी बात को कहना चाहते हो, और आपकी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है। क्या है ये? दे कुड डू देयर ओन कुकिंग, वो अपना खाना पका सकते थे, इवन दो इट वुडंट बी एज नाइस। बोथ आर इक्वल, हैविंग इक्वल इम्पोर्टेंस, बट दीज आर हैविंग इक्वल एम्फेसिस। दोनों में एम्फेसिस डाला जा रहा है कि वो अपना खाना खुद पका सकते थे। दे कुड डू देयर ओन, own is emphatic word, they could do their own cooking, अपनी कुकिंग अपने आप कर सकते थे, even though it wouldn't be as nice। वो अलग बात है कि वो इतनी अच्छी ना बने। so this is the difference। यहाँ पर आप एक में हाईलाइट करना चाहते हो, you want to emphasis on this clause only, but here both clauses are equal emphatic, clear? जैसे कि हमने एम्फेटिक का यूज भी किया है ऑन। अनदर वन, शी वर्कड हार्ड बट शी फेल्ड। हम कई बार कहते हैं कि कंट्रास्ट में तो मैम बट भी आता है, ऑब्वियसली आता है, बट दिस विल बी जस्ट लाइक दिस। ये हम बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हैं, किसी बात को ज्यादा पॉइंट आउट कर रहे हैं, बट व्हेन वी आर यूजिंग बट इट मीन्स बोथ द क्लॉजेस आर ऑफ इक्वल रैंक, एंड इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। सिर्फ एक थोड़ा सा कंट्रास्ट दिखाना चाह रहे हैं, हाईलाइट और एम्फेसिस किसी पर नहीं डालना चाहते। शी वर्कड हार्ड बट शी फेल्ड, उसने मेहनत की थी परंतु फेल हो गई, ठीक है? हियर इज द इक्वल इम्पोर्टेंस टू बोथ द क्लॉजेस। अब अगर बात आती है जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ऑल्दो और दो वी कैन यूज एनीवन, बोथ आर करेक्ट। ही इज पुअर yet he is honest, this is your choice। if you want to use yet here, this can be a pair, although though yet, this can be a pair, correlative, okay, conjunction। but if you do not want to use it, then remove it from here। यहाँ से हम इसको डिलीट कर सकते हैं, put comma here, but यहाँ पर आप but का यूज नहीं कर सकते। आई होप लर्नर्स आपको समझ में आ चुका है। बहुत छोटा सा डिफरेंस है, बट ओपन योर माइंड, ब्रॉड योर माइंड, फोकस ऑन योर पॉइंट, एंड देन देयर इज नो प्रॉब्लम। समझ में आ गया? वेरी गुड।
Thank you for watching this video. Like, share and subscribe. We will meet again very soon. Thank you so much.